के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सानिध्य आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। Kindly be seated. Their labels. Revelation chapter 14:30. Birth and death are not in our hands. They happen at the Lord's appointed time. Sister Clarissa Solomon, maiden name Agnes Solomon, was born on October 17, 1933 at Betia, the youngest child among 9 siblings of the late Solomon Shah and Lucretia. She was brought up in a good traditional Catholic family with a prayerful atmosphere. The exemplary lives of her parents, siblings, and the European Holy Cross sisters in Holy Cross Convent Betia community nurtured her vocation. She developed a great desire to become a Holy Cross sister. In 1955, after finishing her secondary education at St. Teresa's Girls' High School, Betia, Sister Mortimer Eberhard, the mission superior, encouraged her to join the candidacy program of the Holy Cross congregation in Hazaribagh. She found a welcoming home atmosphere in Hazaribagh and developed a genuine interest in religious life. After completing her studies at Francis and Xavier's College, she was called for consulency and novitiate in Hazaribagh. On December 4, 1958, she pronounced her first vows and took the name Sister Clarissa Solomon. She was appointed as an assistant teacher at St. Teresa's Girls' High School in Mahoda from December 1958 to December 1963. From 1964 to 1974, she served as the in charge of St. Robert's Girls' Middle School in Hazaribagh. Later, from 1974 to 1978, she was also in charge of St. Teresa Teachers Training College in Betia. Between 1978 and 1981, she took on the role of in charge at St. Robert's Boys' School in Hazaribagh. Subsequently, from January 1982 to May 1985, she held the position of in charge at Nirmala Convent in Maheshwara. During this time, she also served as the headmistress of Nirmala Girls' High School in Maheshwara. Her kind and compassionate nature was appreciated by the Sandal students of the school. Sister Clarissa demonstrated practical skills that made her an efficient principal of St. Teresa's Teachers Training College in Betia from 1985 to 1995. Despite retiring from the training college in May 1995, she continued to teach a few classes there until her health deteriorated and she could no longer continue. As per her request, she was transferred to Holy Cross Convent St. Teresa Betia for rest. Unfortunately, her health worsened and she fell seriously ill in August 2022. As a result, she was transferred to Ashasdan Balpur for better care on August 17, 2022. She was a devoted Holy Cross sister who always carried out her responsibilities with a mission-oriented approach. She was known for her loyalty towards our congregation and fellow sisters in various communities. She highly valued qualities such as hard work, dedication, generosity, and showing compassion to those in need. She possessed a vast amount of knowledge which she was happy to share with her colleagues and students. Her life was contented and she showed great respect towards authority. She was a kind and thoughtful person who was always supportive yet firm in her instructions. She had a way of inspiring and encouraging others that was truly special. Even though she suffered from various ailments due to old age, she always remained cheerful. She was known for her simple way of life and her commitment to trusting in the Lord and fulfilling her duties was unwavering.
We are forever grateful for her selfless service to the various communities and institutions she served. On March 10, 2024, at 11:30 p.m., Sister Clarissa peacefully passed away at Asha Southern Valipur. She has now joined the company of saints in heaven. Goodbye, dear Sister Clarissa. We bid you farewell. May you rest in peace, reunited with the eternal river that you were destined to follow. Our sincere gratitude goes to the superiors and sisters of the community at Holy Cross Convent, St. Teresa's Betia, for caring for Sister Clarissa until August 2022 with love and sympathy. Throughout all her struggles, Sister Clarissa received the best care, emotional and spiritual support from Holy Cross Convent, Asha Southern Valipur community. It is with deep gratitude that we extend our heartfelt thanks to Sister Usha Karamole and her community for their kindness and support during the last earthly journey of Sister Clarissa Solomon. Our gratitude to God can only be expressed through the Eucharist. I now invite Most Reverend Sebastian Delgado, Archbishop of Cardinal, to join in the celebration of Holy Mass and pray for our beloved Sister Clarissa Solomon's eternal repose. प्यारे बंधुओं, सिस्टर क्लारिसा के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से हम विनती करेंगे कि वो अनंत शांति इनके विश्राम में इनको भी शामिल करें। इस मिसा के समय प्रार्थना करें। आज के मिसा में हम भाग लेंगे। मिसा में योग्य दिल से भाग लेने के लिए अपने पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरी सेविका क्लैरिसा ने क्रिस्त में विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते अब राज्य करते हैं। पहला पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पद संख्या अध्याय 3, पद संख्या 20 से 21। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ऐसे काम करते हैं, जरूर होगा तकलीफ, कठिनाइयां सब हमारे जीवन में होंगे, लेकिन
संतृप्त होंगे, एक सैटिस्फैक्शन, जीवन में एक कंटेंटमेंट, ये मिलता है इस विश्वास के कारण। और दूसरे बात आप लोगों ने सुना है, वहां पर भी एक ही बात, वहां पर यीशु खुद कहते हैं, जिन जिन व्यक्तियों को पिता परमेश्वर ने मेरे पास भेजा कि उनको मैंने ठुकराया नहीं, ठुकराऊंगा भी नहीं, वे लोग सब मेरे पास आएंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है कि सब उनके साथ निवास करें। और अंतिम दिन ऐसे लोगों का पुनरुत्थान होगा कि अगर हम लोग यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो हमको विश्वास करना है, हमारा भी विश्वास होगा, पुनरुत्थान होगा। अगर उनके अनंत जीवन पर हम विश्वास करते हैं तो उनके साथ उनकी अनंतता में हम लोग भी जिएंगे जरूर। अगर इस विश्वास में जीने वाले व्यक्ति मार जाते हैं तब पर भी जीते रहेंगे। इस विश्वास में इस सिस्टर ने पूरा जीवन समर्पित किया कि दुनिया में अपने मिशन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनता के बीच में अपने जीवन बिताया, इसीलिए कि जीवन के अंत तक वह प्रसन्न रहे, कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं, संकेत नहीं, एक संतुष्टि भरे एक जीवन। ऐसा एक जीवन प्राप्त करना हमारे लिए भी जरूरी है। हम ईस्टर मनाने के लिए, हम यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के त्योहार मनाने के लिए अभी तैयारी में हैं। इन दिनों विशेष रूप से हम लोग भी रोजा में हैं। कल मैं एक डॉक्टर के पास गया था और वहां पर जाते समय एक मुसलमान है, उन्होंने कहा आज से हम लोग भी रोजा में हैं, आपके समान हम लोग भी रोजा में हैं, याद रखना। और ये रोजा क्या है? प्रभु के पुनरुत्थान का त्योहार मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, इस विश्वास में, आशा में, दिलासा में जीने के लिए कि हम इस दुनिया के जीवन समाप्त करेंगे, तब पर भी यीशु के साथ एक अनंत जीवन हम बिताएंगे। भाई और बहनों, विश्वास यही है। अगर हम लोग भी इस सिस्टर के समान उतने विश्वास में यीशु के साथ हैं तो जरूर हमारा भी पुनरुत्थान होगा, सबका होगा। और इनके साथ इनके अनंतता में, यीशु की अनंतता में हम लोग भी जीवन जिएंगे। आज हम इस मिसा के समय हमारे बहन सिस्टर क्लैरिसा की आत्मा को प्रभु के हाथों में, उनकी अनंतता में हम समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इनके समान हम लोग भी प्रसन्न होकर अपना कार्य करते हुए इस दुनिया में, समाज में अपने जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन हम लोग जीते रहे। इसके लिए हम उनके द्वारा आज हम सबों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तेरी सेविका क्लैरिसा की मुक्ति के लिए हम ये बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानते थे, अब वे उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। तुम्हारा तुझे धन्यवाद दे, इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया
ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। उन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरे पितृव्रता की घोषणा तेरे पुनरुत्थान हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्ति प्रदक बोध, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं और उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे छाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेतों, प्रतापी शहीदों, संत तेरेसा श्रेष्ठ और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्जन्म की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा करुणा की वृद्धि कर अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। इनके साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा धर्म तथा सम्मान युगानुयुग निराही है। प्रभु की विनती एक साथ बोलेंगे कि हमारे पिता अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति और एकता प्रदान कर, तो यूनानी की जीतना और राज्य करता है। प्रभु यीशु की शांति आप सबों के साथ रहे। एक दूसरे को शांति अभिवादन करें।
देखिए ईश्वर के प्रेम ने इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस महिमा के भोज में आज बुलाए गए हैं। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहेंगे। आमीन। Family, I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who accompanied and supported us during the painful moment of the demise of our dear Sister Clarissa Solomon-son. First of all, I thank the Almighty God for the giftedness of Sister Clarissa to Holy Cross family, especially to Northeast Province, and all that God has accomplished in and through Sister Clarissa during her earthly journey. Our hearts are filled with gratitude to you, Most Reverend Sebastian Kallupura, Archbishop, Patna Archdiocese, for a loving support and accompaniment, especially in our difficult times such as these. In a special way today, thank you so much for availing and gracing this day by officiating this Holy Mass. You have touched the core of our hearts with your thought-provoking words and inspiring message, especially about the life of our dear Sister Clarissa. Your presence means a lot to us at these grief-stricken moments. Thank you, Swamiji. I turn my heart in gratitude to you, Most Reverend William D'Souza S.J., Archbishop Emeritus, Father Selvin S.J., Parish Priest, Queen of the Apostles' Church, Gurji, and all of you, dear fathers from near and far. Thank you for celebrating this Holy Eucharist and for your valuable prayers for the eternal repose of Sister Clarissa. Thank you. To all the family members, dear and near ones of Sister Clarissa, we remain indebted to you always. In a special way, we extend our heartfelt gratitude to all the relatives and dear ones of Sister Clarissa who are present here with us, and also all the friends, benefactors, and well-wishers of Sister Clarissa who have come from far and near. Your comforting presence has made this final earthly journey of Sister Clarissa very meaningful and memorable. Thank you so much, and may God continue to bless you in and through your beloved one. पुनः सिस्टर क्लारिसा की घरवालों और रिश्तेदारों को जो यहाँ उपस्थित है और दूर में भी है, आप सबों को होली क्रॉस परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। To you, dear Sister Usha, the Superior, Sister Anita Abraham, and all the sisters and nursing staff of our community here at Balupur, thank you so much for taking care of Sister Clarissa with so much love and affection. Your care and compassion, especially during her last days of earthly journey, is much appreciated. Thank you so much. To you, dear Sister Catherine Colasso, and all the sisters and candidates at Provincial House community, thank you so much for all that you have done for giving a heart-touching farewell to our dear Sister Clarissa. You have gone out of your way to make all the necessary arrangements for giving a befitting farewell to her. Thank you so much. We gratefully remember the sisters of St. Teresa community for taking care of Sister Clarissa in the evening time of her life there. To you, dear Sister Richie, and the entire choir for the melodious singing, Sister Katharina and everyone for the flower arrangements, Sister Shiny for the photographs and other technical assistance, and all our co-workers and supportive staff for helping us making necessary arrangements for the funeral services of Sister Clarissa here and at the cemetery. Thank you, and God bless you abundantly.
It is impossible to name everybody who supported us, but we are indebted to all of you, dear sisters from different Holy Cross and other religious communities, sisters from India East Province, fathers, brothers, and well-wishers for being with us today, sharing our grief-stricken moments and praying for the departed soul of Sister Clarissa. Thank you so much. To all those who could not be with us today, thank you for your messages of condolences and spiritual accompaniment. Sister Clarissa will live on in the hearts of everyone she has touched and nurtured in her earthly life. Once again, thank you, Mananja. जैसा कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 26 में ये बात कही गई है, और बाइबल के इस कथन के साथ ही हम सब अपना जीवन प्रभु में विश्वास करते हुए ही जीते हैं। आज इस दुख की घड़ी में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरी सिस्टर बुआ, सिस्टर क्लारिसा, हम सबको और इस सांसारिक जीवन को छोड़कर प्रभु में नए जीवन को पाने की अनंत यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन हॉली क्रॉस संस्था में प्रभु की सेवा करते हुए बिताया। उन्हें अंतिम विदाई देते हुए मैं अपने पूरे सोलोमन परिवार की ओर से प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर पुष्पिता, सुपीरियर सिस्टर उषा एवं संस्था की सभी अन्य सिस्टरों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बड़े जतन और अपनेपन से उनकी देखभाल की और सदा प्यार भरा व्यवहार बनाए रखा। मैं जब भी उन्हें मिलने आई, वे जहाँ भी रहीं, चाहे वह स्थान बेतिया हो या पटना, हमेशा ही मैंने उन्हें खुश और संतुष्ट पाया। विशेषकर मैं सुपीरियर सिस्टर उषा को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समय समय पर मुझे फोन पर सिस्टर क्लारिसा की स्थिति से अवगत कराया। सिस्टर, थैंक यू सिस्टर सो मच। उन सभी नर्स सिस्टरों और दीदी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अंतिम समय में उनके साथ रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। साथ ही साथ आज इस मुस्सा बलिदान में जितने भी फादर्स यहाँ उपस्थित हैं और सभी उपस्थित लोगों को भी मैं तहे दिल से एक बार फिर से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, इस कठिन घड़ी में एकजुट होने के लिए। धन्यवाद। अपने संतों के साथ उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान कर और उन्हें अनंत आलोक से आलोकित कर, क्योंकि तू दयालु है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन क्लैरिसा क्रिस्त के अनंत भोज में भी सौभाग्य बन जाए, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।
व्यक्तियों को तो अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी महान शिष्टकारिता की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करें और हमारी इन बहन शिष्टकारिता को संतों की संगति में रखें। न्याय के दिन, न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गणेश की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, देर न हो अब देर न हो, प्रभु के दूतों संतों स्वागत करें इस आत्मा को, अर्पित आप करें प्रभु को। दूध उठाकर इब्राहिम की गोद में इसको सज्जित कर दें, प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभु इसका अर्पण ले लें। दे प्रभु इनको शांति अपार, चमके इस पर परम प्रकाश। स्वागत करे दूत संत सब, पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। हे दयालु पिता, तेरे हाथ में हम अपनी बहन सिस्टर क्लारिसा की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। हे प्रभु, दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारी बहन क्लैरिसा के लिए खोल दे। हम सबसे यह बहन विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस बात हम तुझसे और इन बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। जय जय तेरा स्वागत गाकर दूध स्वर्ग का द्वार खोल दे। आकर अमर शहीद तुझे भी नव यरूशलेम ले चले। दूध संत प्रभु और के सारे गावे तेरा जय जय गान। बसे तू अमर शांति में जहाँ लाजरूस धनी महान।
हे प्रभु हमारे बहन क्लैरिसा पर दया दृष्टिगा, ये सदा चाहती थी कि तेरी आज्ञा पूरी करेगी, इसीलिए इनका समस्त पापदंड क्षमा कर सच्चे धर्म के बंधन ने इनको इस लोक में जिस प्रकार विश्वासगण से संयुक्त रखा था, उसी प्रकार तेरी दया से अब दूतों और संतों के समाज में सम्मिलित होने पाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु इन्हें अनंत शांति प्रदान कर, इन्हें अनंत शांति से आशीर्वाद कर, और एक विश्वास योग्य आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करो।
साथ